Hello all, I welcome my students to my YouTube platform ePolitical Science, and today we will discuss on political inquiry, why there is a need of political inquiry in social science research. This is second unit of part 1 introduction. So within this topic we will try to understand what is political inquiry and how it helps in the social science research. One thing I want to just mention here that I could not find the political inquiry readings in universities a reading package, though I could find many other readings, but it was not related to the political inquiry. So what I could get from other sources and few materials, I jotted down the points and then tried to relate it with the importance of social science research. So let us try to understand दिस टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी, और ये हिंदी में भी मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो पहला वाला यूनिट है उसके सारे टॉपिक सब टॉपिक्स जो हैं बहुत ही थ्योरेटिकल हैं. थ्योरेटिकल होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहे. तो इनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बेस समझें. बेसिक समझने के लिए मैंने बोला था कि आप अपने 11th की एनसीईआरटी अगर पॉलिटिकल साइंस की है तो उसमें नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल और जो सोशल साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ किए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, बिहेवियरलिज्म, ये सब क्या है. तो अगर हम ये सब को समझते हैं तो थोड़ा सा हम कनेक्ट कर पाएंगे पॉलिटिकल इंक्वायरी के साथ. So, political inquiry and social science research, they both are interconnected. Firstly, they are interconnected fields that seek to understand human behavior, governance, societal systems, and political structures. Now, the important components that one can understand within this political inquiry is like it focuses on politics, पावर एंड गवर्नेंस. अब इस जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको अनफोल्ड करना है. पॉलिटिक्स क्या होता है, पावर का डेफिनेशन क्या है, गवर्नेंस से व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नेंस, हाउ गवर्नेंस हेल्प्स यू टू इंक्वायर. नाउ द थिंग इज कि देयर आर वेरियस सब टॉपिक्स एंड सब पॉइंट्स विच आई हैव मेड अवेलेबल ऑन द slides. What you have to do is you have to unfold each and every point and then connect how it helps in political inquiry. Now political inquiry को समझने के लिए, क्योंकि हमें क्या है कि हम यहाँ पे कोई वैसा इन्वेस्टिगेशन हम नहीं कर रहे हैं जो बहुत हद तक लीगल से कनेक्टेड है या सोशल से कनेक्टेड है. यहाँ पे हम पॉलिटिकल इवेंट्स, पॉलिटिकल हैपनिंग्स, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उनकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ इंक्वायरी से मतलब है कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम ब्रॉड कर रहे हैं, हम क्रिटिकल तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं. इंक्वायर करने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं उसको अनफोल्ड कर रहे हैं, हम उसको दोबारा से री इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ कंसेप्चुअल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग की पॉलिटिकल concepts like justice, liberty, democracy, sovereignty. It could be many other topics, for example rights, equality. ठीक है. तो जब हम conceptual analysis करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक जो वैल्यू लेडन टर्म्स हैं उनको हमें समझना पड़ेगा कि इनका क्या मतलब है. जस्टिस का क्या मतलब है पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, लिबर्टी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी कैसे हेल्प करता है हमें चीज़ों को समझने के लिए. तो हमें एक एक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको डिफ़ाइन करके हम उसको समझा सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हमें ये इंक्वायरी, ये हमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, सॉवरेनिटी हमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है. नाउ इंस्टीट्यूशनल स्टडी. Now, when we are talking about political inquiry, we cannot do any sort of interpretation, understanding, or you can say research without the existence of institutions. Now, how does institutions help? So, it examines political institutions, for example, legislatures, courts, executive bodies, and their influence on the society. Now,
For example, if we take executive, what is the role of executive? How does executive helps in policy making? How does executive helps in execution of the plan? Now we have permanent executive, we have temporary executive. What are their roles? Now, what is the role of legislature? What is the role of judiciary? Now, when we talk about these institutions also help us to understand how they shape our society, what influences they have on our society. So these through the existence of these institutions, we can understand any political happening even in a more better way. So we need, when we are doing political inquiry, there are basic things, there are basic requirements that is very important that should have. And how political inquiry helps, it helps in deepening our thought, in making us understand few events happenings in a more comprehensive, in a more broader way. So it helps us to participate, it helps us in inclusive idea of participation while we inquire, we while we show interest in any political happening. For example, recently we had elections in Delhi. So what sort of curiosity, anxiety, and discussions we had with people, with the students or those who were living around, regarding their views, their behavior pattern, on which how they want to vote, which party they want to vote, why do they want to vote, what are their behavior pattern. Now, since institutions help us also to shape our society, so we can take the help of the institutions also while trying to understand the political understanding. Then behavioral analysis. Now, exploring how individuals and groups behave politically, such as the voting pattern, activism, or public opinion. Now, here, as I gave you the example of elections, you can take the example of exit poll, the pre poll, or public opinion which is being generated regarding development, any policy implementation, or any issues concerning the citizens, or any concern which is being faced by the students or anyone, any citizen who are deciding. So how do they behave, what do they feel? So so these things are these behavior analysis helps us in doing, in finding our research in a more better way. Then normative inquiry. Normative inquiry is addressing questions of what should be rather than what is, such as ethical parameters, ethical governance, or human rights. Now, when we are trying to uh, go for engage for any political sort of understanding, any inquiry, now we also need to understand that whether that inquiry is going to be normative or whether it is going to be empirical. Now, when we are doing an inquiry, it could be both, it could be empirical inquiry also, it could be a normative inquiry. But when we are trying to locate the normative inquiry, we are trying to understand the question of what should be rather than what is. Now, if you are going to look into the empirical inquiry while doing the political investigation, political inquiry, then we need to know what should, what is, when we are doing empirical inquiry. So, when I have written here normative inquiry, it does not mean that you are not going to talk about the empirical inquiry. There are empirical inquiry also, because if you look into your first, second, and third unit, there is empirical. The first method which you have to study is empirical method. So both are equally important in political inquiry. Then comparative politics. Now, analyzing and comparing political systems and policies across different countries or regions. Now, when we are trying to do any investigation, any understanding, so it is also important that we do certain comparative study. So if we are locating India's democratic system, we can also compare with American's democratic system, or we can compare with Canadian democratic system. So when we are comparing the different concepts, the political systems or policies, it helps us to do inquiry in a more better way. We can understand it more properly. There could be more clarity
Where there is comparison, there is more clarity, because we come out with exact figures, exact findings, why this is better, why this is not better, why this happened, why this not happened. So the thing is, comparison always helps us to understand things. Now the thing is कि when we are doing political inquiry helps in social science research. We need to understand, because when I started with the first unit and I did the human inquiry, and I've also covered the third unit, ethnography, in social science research. Please go back to those two videos, two topics, and then you can again understand this particular political inquiry and social science research. जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, जिनके लिए रीडिंग पैकेजेस भी अवेलेबल नहीं होती हैं और हिंदी में किताबें भी बहुत कम होती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो टॉपिक्स मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुने, उसको रिलेट करने की कोशिश करें। उदाहरण के भी माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है, और जितना मैं कोशिश कर पाऊँगी कि कवर हो सके ये टॉपिक, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स, वो कवर हो जाए। तो यहाँ पे जो राजनीतिक, जो हम पॉलिटिकल इंक्वायरी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं राजनीतिक जांच और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान या रिसर्च। परस्पर दोनों जुड़े हुए क्षेत्र हैं जो मानव व्यवहार, शासन, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनके प्रमुख घटकों का अवलोकन किया गया है कि किस तरह से वो ये चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर हम राजनीतिक जांच की बात करें, तो राजनीतिक जांच में राजनीति, सत्ता, शासन, ये एक अध्ययन मात्र होता है, अध्ययन केंद्रित होता है। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सत्ता क्या है, शासन क्या है, शासन कैसे हमें हेल्प करता है राजनीतिक जांच करने में। फिर वैचारिक विश्लेषण, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया कि बहुत सारे मूल्यवर्धक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, विश्लेषण है, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, संप्रभुता है, जैसी प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं को अगर हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम राजनीतिक जांच जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल इंक्वायरी कोई एक फैक्टर नहीं है, पॉलिटिकल इंक्वायरी जो है एक आधार है जो बहुत सारे आधारों से जुड़ा हुआ है। तो अगर पॉलिटिकल इंक्वायरी समझना है तो इसके लिए हमें जो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड इवेंट्स है, पॉलिटिक्स रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो सब समझना पड़ेगा, तभी हम इसको सोशल साइंस रिसर्च के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब वैचारिक विश्लेषण मैंने बता दिया। अब संस्थागत अध्ययन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम इस तरह का विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो संस्थाएं इक्वली इन्वॉल्व रहती हैं सारी चीज़ों में, क्योंकि संस्थाएं प्रक्रियाओं का पार्ट हैं। और संस्थाएं क्योंकि प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं, तो संस्थाएं, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, अपने काम कैसे कर रहे हैं, और जो वो काम कर रहे हैं उनसे हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि किस तरह से राजनीतिक जो है जांच प्रक्रिया हो रही है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना सक्सेसफुल है, ये सारी बातों को हम समझ पाते हैं। देन व्यवहार विश्लेषण यहाँ पे, जैसे मैंने बिहेवियरलिज्म बताया, तो यहाँ व्यवहार से मतलब है ये कि व्यक्ति और समूह राजनीतिक रूप से कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए मतदान प्रक्रिया, मतदान पैटर्न, सक्रियता या जनता की राय। एग्जिट पोल जिसे हम कहते हैं, प्री पोल, जो बिहेवियर होता है उसको हम जानते हैं, समझते हैं। तो व्यवहार बहुत ज़रूरी है। अगर इंक्वायरी करनी है तो व्यवहार, जो राजनीतिक जो समूह हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनका व्यवहार क्या है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, तो ये भी समझना ज़रूरी है। ये एक मानक जांच भी होता है कि नैतिक आधार इसमें कि क्या होना चाहिए, नैतिक शासन या मानवाधिकार जैसे कि क्या है के बजाय क्या होना चाहिए के प्रश्नों को संबोधित करता है। फिर तुलनात्मक राजनीति, विभिन्न देशों या क्षेत्रों में राजनीतिक प्रणालियों और नीतियों का विश्लेषण और तुलना करना। तो द थिंग इज़ कि जब हम तुलनात्मक राजनीति पे ध्यान देते हैं तो हम पॉलिटिकल इंक्वायरी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं,
क्योंकि उसमें हर क्षेत्रों का, हर देशों का अलग अलग प्रणालियों का क्यों यूज़ किया गया, नीतियाँ क्यों यूज़ की गई, उसकी जो विश्लेषण है अलग तरीके से हम करेंगे, तभी हम तुलना कर पाएंगे और एक बेटर स्टेट में होंगे कि हम एक इंक्वायरी कर सकें। तो इसलिए जब हम ये टॉपिक कर रहे हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी एंड पॉलिटिकल इंक्वायरी एंड वाई डू वी नीड इट, क्यों पॉलिटिकल इंक्वायरी है, तो पॉलिटिकल इंक्वायरी जैसे मैंने क्लास में भी ये बताया कि पॉलिटिकल इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये हमें एक समावेशी आधार देता है, गवर्नेंस का समावेशी आधार देता है, इंक्लूसिव आइडिया। ये हमें एक वॉइस देता है कि हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अपना और जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका हम सुनिश्चित कर सकें। ये हमें कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल इंक्वायरी एक अच्छा, जो हम कह सकते हैं, समाज बनाने में, बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद करता है। क्योंकि हम जब इस तरह से विवेचना और विश्लेषण करते हैं तो हम बेटर स्थिति में होते हैं कि हम जो भी पॉलिसी रिलेटेड मुद्दे हैं या जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे सामने, हमारे राष्ट्र में, राज्य में, तो उनका हम कहीं ना कहीं जो है रैशनल तरीके से समाधान कर पाएँ। जब हम इंक्वायर करते हैं तो वहाँ पे रैशनैलिटी आती है, और जब हम इंक्वायर नहीं कर रहे होते हैं तब हम अपने मन से कोई भी कुछ भी समाधान बता देते हैं, और वो जब हम अपने मन से बता देंगे समाधान तो वो बहुत ज़्यादा उसका रीच भी नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं होगा। जब हम एक लॉजिक के साथ बताएंगे, रैशनल के साथ बताएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें स्पेशलाइज नॉलेज होगा, इसीलिए हम उस जो है समाधान को बता पा रहे हैं। तो राजनीतिक जांच इसलिए भी ज़रूरी है कि एक रैशनल स्टडी, एक क्रिटिकल स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी को आगे लेके आया जाए। नहीं तो कोई भी बात बोल सकता है अपनी प्रेजुडिसेस के आधार पर, अपनी बायसेस के आधार पर। और जब यही बात मैंने ह्यूमन इंक्वायरी में भी ये बात कही थी कि साइंटिसिज्म को और एम्पिरिकल जो आधार है उसको लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो ये आधार है जो क्या है उस पर हम फोकस करें, रैशनैलिटी पे फोकस करें, तो ये ज़्यादा हमें हेल्प करता है समझने के लिए। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो पॉलिटिकल इंक्वायरी है और सोशल साइंस रिसर्च है, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि पॉलिटिकल इंक्वायरी जो है हमें क्यों करना है, क्यों पॉलिटिकल इंक्वायरी हेल्पफुल है। तो पॉलिटिकल इंक्वायरी की हर जो भी मैंने वर्ड्स बताए, चाहे पावर है, चाहे ये गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, सॉवरेनिटी है, इनको सब आप अनफोल्ड करके बता सकते हो कि कैसे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हेल्प करता है पॉलिटिकल इंक्वायरी में, कैसे इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी में, कैसे बिहेवियर हेल्प करते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी में, कैसे एम्पिरिसिज्म हेल्प करते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी में, कैसे कंपैरेटिव स्टडी हेल्प करते हैं पॉलिटिकल इंक्वायरी में। तो एक एक सब टॉपिक्स को आप अनफोल्ड करते चले जाओ। और जो मैंने बताया था कि एक्चुअली जो ये वाला जो पेपर लॉन्च हुआ है, रिसर्च मेथड्स इन पॉलिटिक्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो 6th सेमेस्टर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं प्रोग्राम में, ऑनर्स में, और रिसर्च मेथडोलॉजी तो वैसे भी एमए के बच्चों को भी पढ़ना है, मास्टर्स जो कर रहे हैं या जो पीएचडी लिख रहे हैं, सबको रिसर्च मेथड्स के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए या नेट जेआरएफ दे रहे हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि ये वाला जो पेपर है रिसर्च मेथड, ये कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प करता है। ठीक है, आपको एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखने में। और इसमें आपका जो सबसे पहले ये जो टॉपिक था वो पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के नाम से था। तो जो बच्चे इसमें डिटेल्स में और पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे होंगे, जैसे क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी अपना सेव कर लें ताकि आप साथ के साथ उस प्लेलिस्ट से भी जो टॉपिक्स है वहाँ से भी निकाल के आप पढ़ सकें, और एक जो है कंपाइल करके दोनों को, तो कंबाइंड स्टडी हो जाएगी आपकी। कुछ मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा, कुछ वहाँ से मिल जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइफरकेशन में मैंने समझा रखा है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं सोच रही हूँ कि जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि वाई डू वी नीड टू डू रिसर्च एंड हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, इस पे भी 2 वीडियोस हैं, रिसर्च पेपर और रिसर्च मेथड्स पे। तो वो भी आप विज़िट कर सकते हो प्लेलिस्ट, और उस पर देख सकते हो। कोशिश करूँगी नेक्स्ट मैं शायद डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है
उस पर हम बात करें, क्योंकि डिस्कोर्स एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड यूनिट का जो है मेथड्स, मेथडोलॉजी, उसमें डिस्कोर्स एनालिसिस पे मैं बातचीत करूँगी। तब तक आप लोग प्लीज़ जुड़े रहें, इसको सपोर्ट करें, और देन गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।